یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کے ہم شکر گزار ہیں جس نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم خدا کی پاک حضوری میں اکٹھے ہوں اور ایک نئے لیکچر کے ساتھ ہارویسٹ بائبل اسکول کی اس بائبل کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 6 باب آیت نمبر 20 سے خدا کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں کی طرف نظر کر کے کہا، مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے۔ مبارک ہو تم جو اب بھوکے ہو، کیونکہ آسودہ ہوگے۔ مبارک ہو تم جو اب روتے ہو۔ ہاللیلویہ، 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 او ہاللیلویہ، 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 تو موجود ہے، تو موجود ہے، تو موجود ہے، تو موجود ہے۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ Thank you, Jesus. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. خدا کی تعریف، تمجید اور ستائش ہو جو مبارک ہے، بھلا ہے، اور اس کا نام ہر ایک نام سے بہت اعلیٰ اور اونچا ہے۔ خدا کے ہم شکر گزار ہیں جس نے ایک بار پھر ہمیں یہ وقت دیا کہ ہارویسٹ بائبل کالج کی کلاس کو آن لائن جو ہے اپنے پیارے بہن بھائیوں سے، بائبل کے طالب علموں سے
خدا کے کلام کو ہم شیئر کر سکیں اور مل کے ہم سیکھ سکیں۔ آج جو میرے پاس ٹاپک ہے بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، اور جس طرح سے مقدس متی کی انجیل میں چیپٹر نمبر 5، 6 اور 7، یہ وہ سرمن ہے جو خدا نے پہاڑ پر بیٹھ کر دیا تھا، جسے پہاڑی واز بھی کہا جاتا ہے، اور مقدس لوکا ایک نئے زاویے سے اور اسے مختصراً بیان کرتا ہے پہاڑی واز کو ان آیات میں۔ ایک ایماندار کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے کہ خدا کے کلام کی ان باتوں کو جانیں۔ نہ صرف اس کا نالج ہونا ضروری ہے، بلکہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے عملی جامہ پہنائیں۔ اور اگر کسی زندگی کے اندر یہ تعلیمات جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہیں یا عملی طور پر جو ہے شکل اختیار کر جاتی ہیں، تو وہ شخص خدا کا پسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ اور پہاڑی باز میں جو رولز خدا نے بتائے ہیں، ان کو گولڈن رولز بھی کہتے ہیں، یعنی سنہری اصول زندگی گزارنے کے لیے۔ اور لکھا، پھر اس نے اپنے شاگردوں کی طرف نظر کر کے کہا، مبارک ہو تم جو غریب ہو۔ تو اب یہاں پر جو خدا نے تعلیم دی ان کو، پہلی جو بات کی گئی، مبارک ہو تم جو غریب ہو۔ اب کئی بار لوگ دولت مند ہونے کے لیے، کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ دولت مند ہونے کے لیے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا۔ بائبل مقدس کے اندر مطلب یہ نہیں ہے کہ دولت بری چیز ہے، لیکن اس وقت ہمارے لیے بری ہو جاتی ہے جب ہم اس کے حصول کے لیے جائز اور ناجائز طریقے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور کئی بار جو ہے وہ ہم خدا ان کے جو رولز ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں اسے بلائے عظیم بھی کہا گیا ہے، یعنی اگر خدا کی جگہ پر ہم اسے دے دیتے ہیں، اور کئی بار جو ہے وہ لوگ خدا کے جو قوانین ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں تاکہ دولت مند ہو جائیں، تو کئی بار اسے ہی زندگی کا سب سے بڑا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے تعلیم دیتے ہوئے کہا، مبارک ہو تم جو غریب ہو۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمانداروں کو کچھ بھی ملتا ہی نہیں ہے، جی نہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، پہلے تم آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ ہاللیلویہ۔ یعنی پہلے بادشاہی، دولت سے پہلے بادشاہی۔ اور جس حال کے میں یہ بھی ملتا ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے، لیکن دولت مند جو ہے، یعنی ایک مثال دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ سوئی کا ناکا یہ یروشلم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ تھا، جو چھوٹا دروازہ تھا، جس کی ہائٹ زیادہ نہیں تھی۔ تو جو بھیڑ بکریاں چرانے والے، جانور چرانے والے شہر سے باہر رہ جاتے، چونکہ شام کے وقت دروازے بند ہو جاتے تھے، تو ایک دروازہ تھا جسے سوئی کا ناکا کہتے تھے، اور وہاں سے جو ہے اونٹ بیٹھ کے، گھٹنے ٹیک کے، یعنی بمشکل وہ وہاں سے گزر جاتا تھا۔ تو کئی بار لوگ اس کو جو ہے وہ پن سمجھتے ہیں، نیڈل سمجھتے ہیں، اس طرح سے، ٹھیک ہے نا، سوئی سمجھتے ہیں اس طرح سے، تو نہیں، یہ ایک دروازے کا نام ہے۔ تو دولت مند کے بارے میں لکھے، آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے مراد یہ لیں گے، جب خدا سے بڑھ کر ہم دولت سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ٹھہرتے۔ کئی بار لوگ غربت کو لعنت سمجھتے ہیں۔ اگر غربت لعنت ہے تو پھر دیکھیں ایوب کے بارے میں، اس کا سارا کچھ جو ہے اس سے چھن گیا، بلکہ موت کے نظر ہو گیا، تباہی اور بربادی ہو گئی۔ تو ایوب جو اوز کی سرزمین میں اس دور کا جو ہے وہ کنگ تھا، عرب کی سرزمین کا بادشاہ تھا، اور ایوب کی کتاب میں اس کے خوشحالی کا بھی ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بچے اور اس کے جانور سارے جو ہیں وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن ایوب نے ان ساری باتوں کے باوجود خدا پر کوئی بیجا الزام نہیں لگایا،
وہ خدا کا فرمانبردار رہا. اور ایوب جو ہے غربت میں بھی خدا کا فخر ہے. خدا اپنے لوگوں پر فخر کرتا ہے اور وہ بتا سکتا ہے کہ میرے لوگ صرف دولت کی وجہ سے ہی مجھ سے پیار نہیں کرتے، میرے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اگر ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو یہ پھر بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں. پریز دی لارڈ. دوسری مثال ہمارے پاس امیر آدمی اور غریب لازر کی ہے. جی، تو اگر دولت ہی سارا کچھ ہے تو پھر دولت رکھنے کے باوجود امیر آدمی جو ہے اس جگہ میں گیا جہاں پر عذاب ہے اور وہ وہاں پر تڑپ رہا تھا. لیکن غریب لازر باپ ابراہم کی گود میں، یعنی باپ ابراہم کی گود سے مراد ہے کہ فیلوشپ آف ابراہم، جہاں پر مقدسین ہے، غریب لازر وہاں پر پہنچا. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کی دولت ہی سارا کچھ نہیں ہے. شارٹلی میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ آج اگر آپ انٹرنیشنل پریچرز کو سنیں تو یسوع مسیح کی صلیب کے پیغام سے ہٹا کر لوگوں کو، بہت سارے پریچرز ہیں وہ صرف دولت کے اوپر ہی لوگوں کو لگا رہے ہیں. اور یاد رکھے دولت ابلیس کے پاس بھی بہت ہے. اس نے یسوع مسیح سے کہا تھا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے، دنیا کی ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا. یاد رکھیں آپ کے پاس جو بادشاہی، آسمان کی بادشاہی، یہ بہت بڑی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں امیر آدمی اور غریب لازر کی سٹوری میں، تو جو غریب لازر ہے وہ مقدسوں کی رفاقت میں ہے، ابدی زندگی کا وارث ہوا ہے. لیکن دولت مند شخص جو ہے وہ عذاب کی جگہ پر ہے. تو اس لیے یاد رکھیں اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ فکر نہ کریں. پر آپ کے پاس آسمان کی بادشاہی ہے، آپ کے پاس بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آپ کے پاس خداوندوں کا خداوند یسوع مسیح ہے. اس لیے فکر نہ کریں. مبارک ہو تم جو بھوکے ہو کیونکہ آسودہ ہو گئے. اگر دنیا کے اوپر آپ کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے تو بھی نو پرابلم، کوئی ایسی بات نہیں ہے. خداوند دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ مجھ سے پیار کرتے ہو. مبارک ہو تم جب روتے ہو کیونکہ ہنسو گے. کئی بار مقدسین خداوند کی خاطر دکھوں میں سے گزرتے ہیں، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز میں سے گزرتے ہیں. زبور میں ہم گاتے ہیں، بیج دا چک کے ذخیرہ روندا ہویا جاندا ہے، پر خوشی دے نال بے شک پریاں چک کے آوے گا، یعنی پولے لے کر آئے گا. کئی بار ہمیں آنسو بہانے پڑتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب اس کا ریوارڈ ہمیں ملتا ہے، جب اس کی بلیسنگ ہمیں ملتی ہے، جب خداوند بدلہ دیتا ہے، جب خداوند خوش ہو کر مہیا کرتا ہے، تو خداوند پھر ساری وہ جو مشکلیں ہیں خداوند ان کا اجر اپنے لوگوں کو دے گا. پریز دی لارڈ. خداوند کے لوگوں کے پاس ابدی اطمینان ہے. دنیا کی چیزوں میں آپ تسلی اور اطمینان کو نہ ڈھونڈیں. جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے دعوت رکھیں گے اور تمہیں خارج کر دیں گے اور لان تان کریں گے. کئی بار آپ کے جاب پلیس پہ آپ کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یاد رکھیں، آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ خداوند کی خاطر کیا جاتا ہے، اور آپ خوش اور شادمان ہو کہ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں پورا ہو رہا ہے. اور اگر تمہارا نام برا جان کر کاٹ دیں گے، آپ کے لیے جو ویکینسی ہے، آپ نے فائل جمع کروائی ہے، اگر آپ کا کرسچن نیم ہے، آپ کی فائل انہوں نے ہٹا دی ہے، آپ ٹینشن نہ لیں. خداوند کی خاطر آپ کے ساتھ ہوئے، آپ خداوند کی شکر گزاری کریں. یاد رکھیں خداوند نے آپ کے لیے اچھی جگہ رکھی ہے تاکہ وہاں پر خداوند جو ہے وہ آپ کو رکھے. اور اس کی مثال ہمارے پاس یوسف کی ہے. جب اپنے آقا کی بیوی کے جو اس کا مائنڈ تھا اس کے مطابق یوسف جو ہے وہ پورا نہ اترا یا اس کی باتوں میں نہ آیا، وہ خداوند کے خوف میں رہنے والا شخص تھا، خداوند سے ڈرتا تھا، بالآخر وہ جیل میں ڈال دیا گیا. لیکن یاد رکھیں خداوند اپنے لوگوں کو بھولتا نہیں ہے. خداوند نے یوسف کے لیے
एक बेहतर जगह रखी थी। यूसुफ को मुल्क मिस्र का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। उस दौर की दुनिया में चारों तरफ कहत और काल था, पर मिस्र के अंदर खुरश मौजूद थी क्योंकि वहां पर यूसुफ था। खुदा ने यूसुफ के लिए अच्छी जगह रखी है। इसलिए अगर से आपकी जो है सीवी, आपकी फाइल हटा दी गई है, नो प्रॉब्लम। खुदा ने आपके लिए अजीम जगह रखी है। आप खुदा की शुक्रगुजारी करें और कहें कि खुदा तेरा कलाम पूरा हुआ है, और ये भी उम्मीद रखें कि खुदावन आपको देख रहा है। खुदा आपके लिए बेहतर जगह जो है वो आपको मुहैया करेगा। बनी इसराइल के बियाबानी सफर में भी लिखा है, खुदावंद उनके आगे आगे चलता रहा और उनके लिए आराम की जगह खुदावंद तलाश करता रहा। याद रखें, अगरचे आप दुख उठा रहे हैं, लेकिन खुदावंद के वक्त का इंतजार करें। एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छी जगह, अच्छी वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया। और लिखे, जब ऐसा हो तो उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। अगर आप यिर्मयाह की किताब को पढ़ें तो उसके अंदर मिलता है कि यिर्मयाह के दौर का जो आखिरी नबी था सिद्ध किया था, और उस दौर के जो काहिन थे वो सारे के सारे बादशाह की मर्जी के मुताबिक नबूवतें करने वाले थे। यानी मतलब यह है कि उस दौर में जो नबी थे वो बादशाहों की सोच और ख्याल के मुताबिक प्रोफेसीज करते थे। इसी तरह से आज भी बहुत सारी नबूवतें इसी तरह की आपको मिलेंगी। लोगों को जब पता है कि बहुत सारे लोग माली बहरान का शिकार हैं, तो वहां पर इसी तरह की नबूवतें होती हैं। खुदा आपको डॉलर दे रहा है, खुदा आपको ये कर रहा है, वो कर रहा है। मेरा मतलब ये नहीं कि खुदावंद आपको डॉलर नहीं दे सकता, लेकिन आपकी तवज्जो मसीह मसलूब पर रहनी चाहिए, डॉलर्स पर नहीं रहनी चाहिए। पहले खुदावंद की तलाश करो, वो सब कुछ आपको मुहैया करेगा। लेकिन आपकी तवज्जो सिर्फ रुपए पैसे पर ही ना हो, रूहें जीतने पर। यीशु मसीह ने कहा, आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो। हमारी निगाह फील्ड पर होनी चाहिए, हमारी निगाह जो है खुदा के खेत पर होनी चाहिए, जहां पर रूहें गुनाह के अंदर मर रही हैं। हमारी आंखें कहां पर लगी हुई हैं, यह हर बंदा खुद जान सकता है। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। वो अपनी दौलत को ही अपना मोहकम शहर समझते हैं और उसी को जिंदगी का सारा जो है वो ताना बाना समझते हैं कि यही लाइफ है। नहीं, याद रखें, ये लाइफ नहीं है। किताब मुकद्दस में यशायाह नबी के सहीफे के 6 बाब के अंदर लिखा है, जिस साल में उज़िया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदा को बुलंदियों पर तख्त पर बैठे हुए देखा। उज़िया बादशाह ने वफात पाई और उसका यशायाह के साथ क्या ताल्लुक है? जब उज़िया की डेथ हुई तो उसके बाद जो पॉसिबिलिटी थी वो ये थी कि यशायाह जब वो बादशाह बनेगा। उज़िया के बाप का नाम अमस्याह था और यशायाह के बाप का नाम आमोस था। अमस्याह बादशाह था और आमोस जो है वो अमस्याह का भाई था। इसी तरह से उज़िया बादशाह बना और उसके बाद यशायाह उसका कजन था। मतलब यह है कि वो भी प्रिंस था, वो भी शहजादा था। अब यह था कि यशायाह जो है वो तख्त पर बैठे, पर उसने बुलंदियों पर एक तख्त को देखा जिसके ऊपर जो बैठा हुआ था उसके कपड़ों से, उसके जो है वो दामन से जैसे वो हलाता है वहां से रोशनियां निकलती हैं और हैकल मामूर हो गई। और यशायाह खुदा का बंदा कहता है, हाय मैं बर्बाद हुआ क्योंकि मैं नापाक और निजस्लब लोगों में बसता हूं। उसने आसमान पर तख्त को देखा जहां पर फरिश्ते खुदा की कदूसियत का इकरार कर रहे थे। जब उसने ऊपर वाला तख्त देखा तो उसने कहा फिर नीचे वाला तख्त मुझे नहीं चाहिए। और फिर मसीह मसलूब का यीशु की पैदाइश से 700 साल पहले जितना रेवलेशन मुकाशफा यशायाह को हासिल हुआ, उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मसलूबियत का इतना शायद अनाजील में भी डीपली हमें नहीं मिलता। उसने अपनी आंखें
दौलत पर नहीं, तख्त पर नहीं, ताज पर नहीं, आसमानी बादशाह के तख्त पर उसने लगाई जहां से बरकत मिलती है। उजिया के नाम की कोई बुक बाइबल के अंदर नहीं है, पर ईसाया के नाम का सहीफा मौजूद है। हालेलुया। तो फिर उजिया बेहतर जिंदगी के अंदर उसने हासिल किया, ये ईसाया ने, इसका जवाब आप देंगे। अफसोस तुम पर जब शेर हो, क्योंकि भूखे हो गए। जो दुनिया की चीजों से शेर है, पर रूहानी खुराक से जो है वो उसकी परवाह नहीं है या उसके मतलाशी नहीं है। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोवोगे। कितने लोग यीशु की मसलूबियत के वक्त सर हिला हिला कर तंज और मजाक उसको कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा तुम रोवोगे, ये शहर एक दिन बर्बाद हो जाएगा जिन्होंने जिंदगी के मालिक को रद्द किया है। अफसोस तुम पर जो जब सब लोग तुम्हें भला कहें। याद रखें, कई बार हम भला भला ही चाहते हैं कि जहां पर भी जाएं लोग हमारी दावतें करें, जहां पर भी जाएं लोग हार हमें डालें, बल्कि पैसों के नोटों के हार डालें, लोग बड़े बड़े लिफाफे दें और लोग कहें वाह पास्टर साहब वाह। और उस वक्त यकीनन आपको वाह वाह करेंगे जब आप बुरे लोगों को भी जो है उनको भी आप कहेंगे कि सारा कुछ ही आप बहुत अच्छे हैं। यूहन्ना ने अपने दौर के अंदर बुरे लोगों पर तनकीद की, गो उसे सर कटाना पड़ गया, लेकिन अपने दौर के लोगों के सामने वो डटा रहा। उसने गुनाह और बदी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, वरना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी हेरोदेस की हुकूमत में कोई वजारत मिल जाती, पर उसने गुनाह और बदी के साथ इत्तेफाक नहीं किया। जैसे मैंने आपको यिर्मयाह की मिसाल दी थी कि यिर्मयाह वाहिद था जिसने सिदकिय्याह के खिलाफ कहा था कि यरूशलेम तबाह हो जाएगा। तो जो वहां पर काहिन थे, जो सैलरी यानी पेरोल पे थे, महल से उनको पैसे मिलते थे, यानी गवर्नमेंट के वो पादरी थे, वहां पर जो एक सफेद बालों वाला कोई प्रीस्ट होगा, उसने यिर्मयाह के मुंह पर थप्पड़ मारा था। उसने कहा मैं सीनियर हूं, मैं बिशप हूं, तुझे ज्यादा पता है। लेकिन याद रखें वो यिर्मयाह जूनियर था, लेकिन वही कुछ हुआ जो खुदा के खादम ने, जो खुदा के नबी यिर्मयाह ने कहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि लोग उसके लिए जब वो जो है वो किसी सियासी जो है वो महफिल में जाए तो लोग जो है वो उसकी बड़ी आओ भगत करें, उसका वार्म वेलकम किया जाए, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट हो। जब आप हक और सच पर बोलेंगे तो जरूरी नहीं कि आपकी रिस्पेक्ट हो, क्यों उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे, उनको बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल देते थे। लेकिन याद रखें वो सच के साथ खड़े नहीं हुए, उन्होंने गुनाह और बदी का साथ दिया। लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। जी, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। अच्छा, यहां पर ये बात देखें, जो तुमसे अदावत रखते हैं उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो, जो तेरे एक गाल पर तमांचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता भी लेने से मना ना कर, जो कि तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर। जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करे तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा पूरा वसूल कर लें। तो एक ईमानदार में और एक बेदीन में क्या फर्क हुआ। अच्छा, यहां पर एक बात हम देखेंगे कि जो लिखा है, जो को तेरे एक गाल पर तमांचा मारे तो दूसरा उसकी तरफ फेर दे। तो यहां पर एक क्वेश्चन है कि अगर एक मसीही फौज के अंदर है, अच्छा ये जो यीशु मसीह ने तालीमात दी है ये इंडिविजुअल्स के लिए है, ये इनफरादी तौर पर है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मसीही फौजी है तो अगर
दुश्मन फौजी जो है वो उसके मुंह पर तमांचा मारता है तो वो दूसरा उसकी तरफ फेर दे, नहीं, ये यहां पर फिट नहीं आता। ये हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर जो है यीशु मसीह ने ये कहा था, तालीम दी। अगर हम फौजी हैं तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये यहां पर देखते हैं रोमियो के नाम पौलुस रसूल ने जो खत लिखा, और यहां पर भी कुछ लिखा है 13वें बाब की पहली 7 आयत में, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतजाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ है वो सजा पाएंगे, क्योंकि नेकोकार को हाकमों से खौफ नहीं बल्कि बदकार को है। बस अगर तो हाकम से निडर रहना चाहे तो नेकी कर, उसकी तरफ से तेरी तारीफ होगी, क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादम है। अगर तू बदी करे तो डर, क्योंकि वो तलवार बेफायदा लिए हुए नहीं, और खुदा का खादिम है कि उसके गजब के मुवाफिक बदकार को सजा देता है। तो यहां पर अगर कोई ये सवाल करे कि एक मसीही मुल्क में या एक अमेरिका के अंदर तो लिखा है तो दूसरों को मुआफ कर, ठीक है, तो जो कत्ल करते हैं तो हमें, हाँ, पर्सनली हमें जो है ये इख्तियार नहीं है कि हम ऐसा करें। लेकिन अगर आप सोल्जर हैं, अगर आप सिपाही हैं, अगर आप फौजी हैं, तो फिर ये हुकूमत ने कानून बनाया है कि उनको सजा मिले, और हुकूमत का मुकर्रर करने वाला खुदा है। चूंकि दुनिया के अंदर जितनी भी हुकूमतें बनती हैं वो खुदावन की मर्जी से बनती हैं। अगर वहां पर सजा दी जाती है तो ठीक है ना, जैसे कोई कहता है कि यहां पर तो लिखे अगर तेरे एक गाल पर तमांचा मारे दूसरे उसकी तरफ फेर दे, तो ये इंडिविजुअल्स पर लागू होता है, और ये हुकूमती लेवल पे जो हुकूमत ने रूल्स बनाए हैं ये उन पर लागू नहीं होता। इसलिए मैंने रोमियो 13वां बाब और इसकी पहली 7 आयत में से आपको जो है ये रेफरेंस दिया है। बस ताबेदार रहना ना सिर्फ गजब के डर से जरूर है, बल्कि दिल भी यही गवाही देता है। तुम इसलिए खराज भी देते हो कि वो खुदा के खादम है। और इस जी, तो यहां पर खराज की टैक्स की बात की गई है, और याद रखें ये खुदा का असूल है कि जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स दो, और यीशु मसीह ने भी नीम मिसकाल दिया था, तो यीशु मसीह टैक्स पेयर था। और इसी तरह से दुनिया के अंदर या हमारे मुल्क के अंदर मैं समझ रहा हूं कि जितने भी मसीही हैं उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए, क्योंकि हुकूमत खुदावंद की तरफ से आती है। और इसलिए जितने भी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं उनमें देखें दूसरे ममालिक की निस्बत, तो वहां पर ज्यादा लोग टैक्स देते हैं। और इसकी एक रीजन ये भी है, अगर वहां पर लोग टैक्स देते हैं तो वो मसीही गवर्नमेंट जो है वो लोगों की वेलफेयर के लिए जो है वो टैक्सेस को खर्च करती है, अपनी अयाशी के लिए खर्च नहीं करती। लेकिन जहां पर नाइंसाफी है फिर वहां पर कई बार लोग टैक्स नहीं भी देते, पर हमें टैक्स देना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगर कोई उसका गलत यूज करता है तो वो जाने और उसका काम जाने, और खुदा उससे पूछेगा। और लिखा है जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसकी इज्जत करना चाहिए उसकी इज्जत करो। तो ये किताब मुकद्दस में जो है, बाइबल मुकद्दस में जो है तालीम दी गई है। ठीक है, तो खुदा के जो गोल्डन रूल्स हैं हमने उनके बारे में सीखा है। और फिर जो है वो हमने लूका की इंजील में से जो हम सीख रहे थे, यहाँ पर जो है हमने खुदा के कलाम में से सीखा है। और एक दो बात और आगे से सीखते हैं। लूका की इंजील इसका 6वां बाब यहां से जो है हम आज सीख रहे हैं। और फिर लिखा है जी, तो खुदा यीशु मसीह ने इंडिविजुअली जब शागिर्दों के पांव धोए तो यहूदा अस्करियुती के भी उसने पांव धोए थे, और ये बहुत बड़ी बात है। और फिर खुदा ने तालीम दी कि जो तुम्हारे साथ नेकी करते हैं सिर्फ उनके साथ ही नेकी ना करो, वरना आप में और एक बेदीन में कोई फर्क नहीं है। मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो, और बगैर नाउमीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा है। मतलब ये नहीं है कि फिर आप सोचो कि फलां शख्स मुझे पैसे कब देगा, आपको खुदा ने दिए थे आपने दे दिए।
लेकिन अच्छी बात है कि हमें वापस करना चाहिए, लेकिन बतौर ईमानदार हमें दे के फिर खुदा की ब्लेसिंग का इंतजार करना चाहिए कि आपने खुदा की मर्जी को पूरा किया है। और फिर लिखे तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहम दिल हो। तो खुदा के लोग होते हुए, खुदा के बेटे होते हुए हमारे अंदर ये खूबी, ये रहम दिली होनी चाहिए। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। मुजरम ना ठहराओ, तुम भी मुजरम ना ठहरा जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। जब दूसरों को आप मुआफ कर दोगे तो फिर आपको भी मुआफी मिलेगी। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। तो ये गोल्डन रूल्स हैं। खुदा बरकत देता है, इसीलिए ईमानदार होते, मसीही होते हुए हमें जो है वो देने वाले बनना है। अच्छा पैमाना दाब कर और हिला हिला कर लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उससे तुम्हारे लिए नापा जाएगा। दूसरों को देने के ताल्लुक से और खुदावंद को देने के ताल्लुक से अपना अच्छा हिस्सा देकर 200-400 और खुदा की हुजूरी में पेश करें, यानी दाब कर उस पैमाने को भरना। ऐसा नहीं है कि मतलब पोला पोला। उसने उनसे एक तमसील भी कही, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में ना गिरेंगे? शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता। याद रखें, अगर यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों को मुआफ किया तो हम यीशु के अगर शागिर्द हैं तो फिर हमें भी मुआफ करना है। बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। तो अगर आप मत्ती की इंजील के अंदर पहाड़ी बाज को पढ़ते हैं, या यहां पर उसका जो है इख्तिसार दिया गया है लूका की इंजील में, ये जो मैं पढ़ रहा हूं, तो ये पहाड़ी बाज का जो है ये इख्तिसार है, मुख्तसरन बयान किया गया है। तो जो ये रूल्स अगर किसी मसीही के अंदर नहीं है तो वो फिर मैं समझ वो मसीही ही नहीं है। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखकर अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता? हम दूसरों पर इल्जाम दे रहे होते हैं और हो सकता है उसी गुनाह के हम खुद मुर्तकिब हों। जब तो अपनी आंख के शतीर को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कहता है कि भाई ला उस तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दूं। ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख से तो शतीर निकाल, फिर उस तिनके को जो तेरे भाई की आंख में अच्छी तरह से देखकर निकाल सकेगा। क्योंकि अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए, और जो कोई बुरा दरख्त है जो, और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। अगर ये जो जितने कैरेक्टरिस्टिक्स, ये खूबियां पहाड़ी बाज में या इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं, अगर ये हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है तो याद रखें आप दरख्त तो हैं पर आप बेफल दरख्त हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो फिर जो फल नहीं लाते दरख्त वो काट डाले जाएंगे, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़ बेरी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है। तो ये रूल्स हैं, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर इनको ले लेते हैं तो आप वो शख्स हैं जो रोल मॉडल हैं या जो खुदावंद चाहता है। और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। खुदावंद आपके साथ हो। जब खुदा के कलाम से आप भर जाएंगे तो फिर आप एक वाकई जो है आइडियल पर्सनैलिटी होंगे, ना सिर्फ इंसानों के बीच में बल्कि खुदा की नजर में भी आप मकबूल होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे और इन रूल्स पर अमल करने की हम सबको तौफीक दे। गॉड ब्लेस यू।